بہت دنوں پہلے کی بات ہے۔ کسی مقام پر ایک آدمی رہتا تھا۔ وہ نہ امیر تھا نہ غریب۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ بیٹے بڑے خوبصورت اور سجیلے جوان تھے۔ لکھنا پڑھنا سیکھ گئے تھے۔ بڑے ہوشیار اور سمجھدار تھے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، برے لوگوں سے دور رہتے تھے۔ سب سے بڑے بھائی نصر کی عمر 21 سال کی تھی۔ منجلے بھائی نوروز کی عمر 18 سال کی اور سب سے چھوٹے بھائی نادر کی عمر 16 سال کی تھی۔ ایک دن باپ نے تینوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا۔ ان کو اپنے پاس بٹھا کر ہر ایک کو لاڈ پیار کیا، سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر کہنے لگا، میرے عزیز بیٹو، میرے پاس کوئی دولت نہیں ہے۔ میرے مرنے کے بعد جو کچھ تمہارے لیے رہ جائے گا وہ بہت دن نہیں چل سکے گا۔ تم لوگ مجھ سے زیادہ کی امید نہ رکھو۔ تم لوگوں کے لیے جو کچھ کر سکتا تھا میں نے کیا۔ میں نے تم لوگوں کو 3 گن دیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں نے تم لوگوں کو صحت مند اور طاقتور بنایا۔ دوسرا یہ کہ میں نے تم لوگوں کو ہتھیاروں سے کام لینا سکھایا اور تم لوگ ماہر سپاہی بن گئے۔ تیسرا یہ کہ میں نے تم لوگوں کو سکھایا کہ کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے اور تم لوگ بہادر بن گئے۔ اب میں تم لوگوں کو 3 نصیحتیں کرتا ہوں اور ان کو سن لو اور ہمیشہ یاد رکھو۔ ایماندار بنے رہو، ہمیشہ پریشانی سے دور رہو گے، شیخی نہ بھگارا کرو، تم کو شرمانا نہ پڑے گا، محنت سے جی نہ چراؤ، آرام اور سکھ سے جیو گے، باقی سب کی فکر تم لوگ خود کرو۔ میں نے تم لوگوں کے لیے 3 گھوڑے تیار کر رکھے ہیں، کالا، بھورا اور خاکی رنگ کا۔ تمہارے تھیلوں میں اتنی خوراک بھر دی ہے جو 1 ہفتے کے لیے کافی ہوگی۔ اب تم لوگ سفر پر روانہ ہو جاؤ۔ دنیا میں گھومو پھرو، دنیا کو دیکھے بغیر آدمی نہ بن سکو گے۔ جاؤ اپنی قسمت کو آزماؤ۔ سفر بخیر میرے بیٹو۔ یہ کہہ کر باپ اٹھا اور چلا گیا۔ تینوں بھائی سفر کی تیاری میں لگ گئے۔ اگلے دن پو پھٹتے ہی وہ تینوں گھوڑوں پر سوار ہو کر سفر پر روانہ ہوئے۔ وہ سارا دن رکے بغیر چلتے رہے اور اپنے گھر سے بہت دور نکل گئے۔ شام ہوئی اور اندھیرا چھانے لگا تو ایک جگہ آرام کرنے کے لیے رکے۔ وہ اپنے گھوڑوں سے اترے، بیٹھ کر کھانا کھایا اور سونے کی تیاری کرنے لگے۔ وہ مقام بالکل سنسان اور ویران تھا۔ چنانچہ بھائیوں نے سوچا کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم تینوں ایک ہی ساتھ سو جائیں۔ بہتر یہی ہے کہ رات کو 3 حصوں میں بانٹ لیں اور باری باری پہرا دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ سب سے پہلے بڑا بھائی نصر پہرا دینے لگا، باقی دونوں لیٹ کر سو گئے۔ نصر بڑی دیر تک بیٹھا اپنی تلوار سے کھیلتا رہا اور چاروں طرف نظریں دوڑاتا اپنے بھائیوں کی نیند کی حفاظت کرتا رہا۔ چاندنی رات تھی، چاروں طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، سارا ماحول گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ اچانک ایک طرف سے شور سا سنائی دیا۔ نصر فوراً اٹھا اور ننگی تلوار پکڑ کر چوکنا کھڑا ہو گیا۔ یہ تینوں بھائی جہاں رکے تھے وہاں سے کچھ دوری پر جنگل تھا اور اس میں ایک شیر اپنی کھو میں پڑا ہوا تھا۔ انسان کی بو پا کر وہ اب اپنی کھو میں سے نکل کر کھلے میدان میں آ گیا تھا۔ شیر کو دیکھ کر نصر ڈرا بھی نہ اور نہ گھبرایا۔ اسے یقین تھا کہ شیر سے نپٹ لے گا، بس اسے اس بات کی فکر تھی کہ بھائیوں کی نیند خراب نہ ہو، اس لیے وہ ایک طرف کو دوڑ پڑا۔ شیر نے اس کا پیچھا کیا۔ تھوڑی دور جا کر نصر نے پیچھے مڑتے ہوئے شیر کے دائیں پنجے پر تلوار ماری۔ زخمی شیر دھاڑتا ہوا اس پر لپکا۔ نصر پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا اور اپنی تلوار سے شیر کے بائیں پنجے پر بھرپور وار کیا۔ شیر اپنی تمام طاقت یکجا کر کے ایک بار پھر بہادر پر ٹوٹ پڑا۔ نصر پھر تراتے گیا اور اس بار اس نے شیر کے سر پر کھینچ کر تلوار ماری۔ شیر دھم سے گر پڑا اور فوراً مر گیا۔ نصر شیر کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے شیر کی کھال میں سے ایک لمبا سا پٹا کاٹ کر کرتے کے اندر اپنی کمر کے گرد باندھ لیا۔ پھر وہ اپنے بھائیوں کے پاس لوٹ آیا اور کچھ اس طرح اپنی جگہ پر بیٹھ گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد نصر کی پہریداری کا وقت ختم ہو گیا۔ وہ سونے لیٹا اور پھر نوروز پہرا دینے لگا۔ اس کی پہریداری کا وقت بغیر کسی حادثے کے بیت گیا۔ اب تیسرے بھائی نادر کی باری آئی۔ اس کی پہریداری کے دوران بھی کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوئی۔ پہلی رات اسی طرح گزر گئی اور صبح ہوئی تو تینوں بھائی اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر پھر آگے چل پڑے۔ وہ بہت دیر تک چلتے رہے اور ایک لمبا راستہ طے کیا۔ سورج ڈوبتے وقت وہ ایک پہاڑ تک پہنچے۔ اس پہاڑ کے دامن میں ایک بہت اونچا درخت اگا ہوا تھا۔ اس کے نیچے ایک چشمہ تھا۔ بھائیوں نے یہیں چشمے کے کنارے رات کاٹنے کا فیصلہ کیا۔ چشمے کے قریب ایک غار تھا اور اس کے اندر سانپوں کا بادشاہ اجدر سلطان رہتا تھا۔
लेकिन भाइयों को उसका कुछ अता पता नहीं था। उन्होंने अपने घोड़ों को पानी पिलाया, फिर दरख्त से बांध कर उनको साफ किया, उनकी पीठ की मालिश की, उनके सामने चारा डाल दिया और फिर खुद खाना खाने बैठ गए। खा पी चुके तो उन्होंने आपस में तय किया कि पिछली रात की तरह आज भी वो बारी बारी सोएंगे और बारी बारी पहरा देंगे। चुनाचे गुज़िश्ता रात की तरह मंझला और छोटा दोनों भाई लेटकर सो गए और बड़ा भाई नसर पहरा देने लगा। उसकी पहरेदारी में कोई खास बात ना हुई। अब दूसरे भाई नौरोज की बारी थी पहरा देने की। वो पहरा देने लगा। चांदनी रात थी, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन अचानक शोर सुनाई दिया। थोड़ी ही देर के बाद गार से अजदर सुल्तान निकल आया। वो अपने देग से सर को उठाए मोटे कुंदे जैसे बदन को घसीटता और फुनकारे मारता हुआ चश्मे की तरफ बढ़ा। और नौरोज जरा भी नहीं डरा, इस ख्याल से कि भाइयों की नींद में खलल न पड़े। वो उठकर चश्मे से परे खुले मैदान की तरफ दौड़ा। इंसान की बू पाकर अजदर सुल्तान ने उसका पीछा किया। जरा दूर जाकर नौरोज रुक गया और अपनी तलवार से सांपों के बादशाह की दुम पर वार किया। तलवार की ज़रब से अजदर सुल्तान जमीन पर लौटने लगा। बहादुर ने चुस्ती से उसकी पीठ पर जोर से तलवार मारी। सांप सख्त जख्मी हो गया और तीसरे वार से उसने दम तोड़ दिया। नौरोज ने उसकी खाल में से एक लंबा पट्टा काटकर उसको कुर्ते के अंदर कमर के गिर्द बांध लिया और वापस आकर अपनी जगह पर इस तरह बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ी देर में उसकी पहरेदारी का वक्त खत्म हुआ और फिर नादिर की बारी आई। उसकी पहरेदारी का वक्त भी बखैर खूबी गुजर गया। इस तरह दूसरी रात भी खत्म हुई। सुबह होते ही तीनों भाई घोड़ों पर चढ़कर फिर अपने रास्ते पर रवाना हो गए। वो दिन भर चलते रहे, आगे बढ़ते रहे, पहाड़ों से गुजरते, बियाबानों से गुजरते, जो जब सूरज डूबने लगा तो एक टीले तक जा पहुंचे। वही रात गुजारने का इरादा करके घोड़ों से उतरे। रात अंधेरी थी क्योंकि आसमान पर बादल छाए हुए थे, इसलिए उन्होंने आग जला ली। फिर उन्होंने बैठकर खाना खाया। हस्बे मामूल दो भाई सोने लेटे और सबसे पहले बड़ा भाई पहरा देने लगा। फिर उसकी जगह मंझले भाई ने ले ली। उसके बाद छोटे भाई की बारी आई। छोटा भाई नादिर देर तक बैठा पहरा देता रहा। चारों तरफ खूब अंधेरा छाया हुआ था, कुछ नजर नहीं आता था, इसलिए नादिर कान खोले लेकिन आंखें बंद किए बैठा रहा। कभी कभी आंखें खोलकर इधर उधर देखता और फिर आंखें बंद कर लेता था। एक दफा जो उसने आंखें खोली तो देखा कि आग बुझ गई है। ये अच्छा नहीं हुआ कि आग बुझ गई है, इसको फिर जलाना चाहिए, उसने सोचा। ये सोचकर वो टीले पर चढ़ गया और इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा कि शायद कहीं आग जलती हुई नजर आ जाए। अचानक उसे एक तरफ बहुत दूर कोई चिराग सा टिमटिमाता हुआ दिखाई दिया। वो फौरन टीले से उतरकर घोड़े पर चढ़ा और उस तरफ को चल दिया। वो बहुत देर तक चलता रहा और आखिर एक अकेले मकान तक जा पहुंचा। वो घोड़े से उतरा और आहिस्ता आहिस्ता पंजों के बल चलता हुआ जाकर खिड़की से अंदर झांकने लगा। अंदर रोशनी थी। कमरे के बीचों बीच चूल्हे पर देग में खाना पक रहा था और उसके गिर्द कोई 20 आदमी बैठे आपस में बातें कर रहे थे। उन सब के चेहरे खौफनाक थे और आंखें फटी हुई थी। ऐसा लगता था कि ये लोग कोई साजिश किए बैठे हैं। ये तो डाकुओं का अड्डा मालूम होता है। नादिर ने सोचा, इनको यूं ही छोड़कर चला जाऊं तो ये कोई अच्छी बात नहीं होगी। किसी ईमानदार आदमी के लिए ऐसा करना मुनासिब नहीं है। चलो चालाकी से काम लूं, इनके बीच रहकर इनकी चाल ढाल मालूम कर लूं। ऐसा करूं कि इनको मुझ पर एतबार हो जाए और मैं मौका देखकर अपना काम कर जाऊं। ये तय करके उसने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। अचानक एक अजनबी आदमी को इस तरह अंदर आते देखकर डाकू चौंक उठे और अपने हथियार संभाल लिए। नादिर ने डाकुओं के सरदार से मुखातिब होकर कहा, हुजूर, मैं आपका एक हकीर सा गुलाम हूँ। दूर दराज के एक शहर से आया हूँ। अब तक मैं छोटे मोटे धंधे करता रहा हूँ, लेकिन बहुत दिनों से मेरा इरादा था कि किसी गिरोह में शामिल हो जाऊं, आपके जैसे किसी गिरोह में। अब अचानक मुझे हुजूर का पता लग गया और मैं यहाँ चला आया हूँ। अब आप ही का आसरा है। अज़राए करम मुझे अपने गिरोह में शामिल कर लीजिए। हुजूर, आप मेरी जवानी पर न जाइएगा। मैं बहुत से गुर जानता हूँ। मुझे सुरंगें खोदना, टोह लगाना, चुपके से इधर उधर की बातें मालूम करना आता है। मैं ज़रूर आपके काम आऊँगा। नादिर ने इस सफाई से स्वांग भरा कि डाकुओं के सरदार ने उसकी बातों पर यकीन कर लिया और कहा, तुमने बहुत अच्छा किया कि आए, आओ बैठो। नादिर ने दोनों हाथ सीने पर रखते हुए झुककर सलाम किया और आग के करीब जाकर बैठ गया। खाना तैयार हो गया। सब ने खाना खाया। उस रात डाकुओं ने बादशाह का खजाना लूटने का मंसूबा बना रखा था। चुनाचे खाने के बाद वो सब घोड़ों पर चढ़कर शाही महल की तरफ रवाना हो गए। नादिर भी उनके साथ चला। थोड़ी देर में वो बादशाह के बाग के सामने पहुंच गए
और आपस में मशवरा करने लगे कि महल में किस तरह घुसा जाए। आखिर उन्होंने तय किया कि सबसे पहले नादिर दीवार पर से बाग में उतरेगा और चुपके से ये पता लगाएगा कि पहरेदार सो रहे हैं या जाग रहे हैं। अगर वो सो रहे होंगे तो बाकी सब डाकू एक एक करके बाग में उतरेंगे और फिर एक साथ महल में घुस जाएंगे। डाकुओं की मदद से नादिर बाग की ऊंची दीवार पर चढ़ा और वहां से छलांग लगाकर नीचे बाग में उतर गया। थोड़ी देर बाग के अंदर घूम फिर कर उसने मालूम किया कि पहरेदार सब गफलत की नींद सो रहे हैं। बाग के अंदर एक तरफ दो बड़े बड़े पहियों वाली एक ऊंची घोड़ा गाड़ी खड़ी थी। नादिर उसको खींचता हुआ लाया और दीवार के पास खड़ा कर दिया। फिर उस पर चढ़कर साथियों को इत्तला दी कि बहुत अच्छा मौका है। अपने सरदार के इशारे पर डाकू एक एक करके दीवार पर चढ़ने लगे। पहले डाकू ने जूं ही अपना पेट दीवार पर रखकर सर बाग की तरफ झुकाया, नादिर ने उसकी गर्दन पर तलवार मारी। उसका सर कटकर बाग में गिर पड़ा और नादिर ने उसके मुर्दा जिस्म को खींचकर बाग में गिरा दिया। बाकी सब डाकुओं का भी यही हशर हुआ। फिर नादिर महल की तरफ रवाना हुआ। वो एहतियात से चलता हुआ सोए हुए चौकीदारों के पास से गुजरकर एक बड़े हाल में दाखिल हुआ। हाल में तीन तरफ 3 दरवाजे थे। यहाँ भी 10 लड़कियां पहरे पर तैनात थीं, लेकिन वो भी सब के सब सोई पड़ी थी। नादिर चुपके से 3 दरवाजों में से एक में दाखिल हो गया। देखता क्या है कि एक बहुत ही सजा सजाया कमरा है। दीवारों पर रेशम के पर्दे लगे हैं जिस पर सुर्ख रंग के खूबसूरत गुलाब के फूल कड़े हुए हैं। कमरे के बीच में चांदी के पलंग पर एक निहायत खूबसूरत लड़की सफ़ेद चादर में लिपटी सो रही है। वो इतनी हसीन है कि दुनिया का कोई भी फूल मुकाबला नहीं कर सकता। नादिर दबे पांव चलता हुआ उस हसीना के पास आया। उसके दाएं हाथ की उंगली से सोने की अंगूठी आहिस्ता से उतार कर अपनी जेब में डाली और फिर वापस हॉल में आ गया। अब आओ दूसरे कमरे का मुआयना कर लें, देखें वहां क्या क्या राज हैं, उसने अपने आप से कहा। ये सोचकर वो दूसरे कमरे में दाखिल हुआ। ये कमरा पहले वाले कमरे से भी ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा सजा हुआ था। हर तरफ दीवारों पर रेशम के पर्दे लटक रहे थे जिन पर तरह तरह की चिड़ियों की तस्वीरें कड़ी हुई थी। कमरे के बीचों बीच चांदी के पलंग पर एक लड़की सो रही थी जिसके हुस्न पर सूरज और चांद में बराबर बहस चल रही थी। सूरज कहता था कि उसने अपना हुस्न मुझसे लिया है और चांद कहता था कि मुझसे लिया है। उसके पलंग के इर्द गिर्द कोई 9-10 कनीजें नींद में डूबी पड़ी थी। नादिर ने आहिस्ता से जाकर पलंग पर सोई हुई हसीना की उंगली से अंगूठी उतारकर अपनी जेब में रखी और फिर वापस हाल में आ गया। अब वो तीसरे कमरे की तरफ बढ़ा। तीसरे कमरे की आराइशो ज़ेबाइश पहले वाले दोनों कमरों से भी बढ़कर थी। उसकी दीवारें हल्के हल्के गुलाबी रंग के रेशम से सजी हुई थी। कमरे के एक पलंग पर 16 कनीजों से घिरी हुई एक हसीना सो रही थी। उसका हुस्न ऐसा था कि सितारों की मलका सितारा सहर जोहरा भी उसकी गुलामी करती। नादिर ने आहिस्ता से लड़की के दाएं कान की बाली उतार ली और कमरे से निकल आया। वो महल से निकला, बाग से होकर दीवार को फांद कर बाहर आ गया और घोड़े पर चढ़कर वापस अपने अड्डे की तरफ चला। वहां पहुंचा तो उसके भाई अभी तक सो रहे थे। नादिर अपनी जगह पर बैठ गया और अपनी तलवार से खेलता हुआ सुबह होने का इंतजार करने लगा। पो फटी, दुनिया पर से रात का स्याह पर्दा उठ गया। तीनों भाइयों ने बैठकर नाश्ता किया। नाश्ते के बाद वो अपने घोड़ों पर जीन कसकर उन पर सवार हुए और आगे चल पड़े। कुछ देर चलकर तीनों बहादुर एक शहर में पहुंचे और एक कारवां सराय में जाकर उतरे। उन्होंने छप्पर के नीचे अपने घोड़ों को बांध दिया और चाय खाने की तरफ चले। वहां वो चाय पीते हुए आराम करने लगे। इतने में सड़क पर एक ढंडोरची नमूदार हुआ और ऊंची आवाज से ऐलान करने लगा, ऐ शहर के बाशिंदों, कान खोलकर सुन लो। आज रात बादशाह सलामत के महल में एक अजीबो गरीब वाकया हुआ है। महल के बाग में किसी ने 20 डाकुओं के सर कलम कर दिए हैं और शहजादियों की एक एक सोने की चीज गायब हो गई है। बादशाह सलामत ने यह ख्वाहिश जाहिर की है कि शहर के तमाम बाशिंदे, चाहे वो बड़े हों या छोटे, इस राज को खोलने में हाथ बटाएं ताकि ये मालूम हो सके कि वो कौन सा बहादुर है जिसने ये अनोखा कारनामा अंजाम दिया है। जिस किसी के हाथ दूसरे शहरों और मुल्कों से आए हुए अजनबी ठहरे हों, वो उनको फौरन दरबार में हाजिर करे। चुनाचे कारवां सराय के मालिक ने अपने मेहमानों से कहा कि वो जल्दी से दरबार में पहुंच जाएं। तीनों भाई उठे और शाही दरबार की राह ली। बादशाह को इतला दी गई कि 3 अजनबी आए हैं, तो बादशाह ने हुक्म दिया कि उनको एक एक अलग अलग कमरे में ठहराया जाए और अपने वजीर से कहा कि तुम उनसे बात करके राज मालूम करो। वजीर ने कहा, सीधे तरीके से पूछा जाए तो मुमकिन है वो कुछ न बताएं। बेहतर होगा कि उन्हें अकेला ही छोड़ दिया जाए और छुप कर उनकी गुफ्तगू सुनी जाए। ऐसा ही किया गया।
तीनों भाइयों के सामने दस्तरख्वान बिछाकर खाने की तरह तरह की चीजें चुन दी गईं। तीनों नौजवान खाना खाने लगे और साथ के कमरे में बादशाह और वजीर बैठे उनकी बातें सुनने लगे। नसर ने कहा, हमें एक नौउम्र भेड़ का गोश्त खाने को दिया गया है, लेकिन मालूम होता है कि उस भेड़ को किसी कुतिया ने अपना दूध पिलाया था। हाँ, आपकी बात सही है, नौरोज ने कहा। बादशाह, लोग कुत्ते का गोश्त खाने से भी गुरेज नहीं करते। मुझे तो इस बात पर ताज्जुब हो रहा है कि अंगूर के इस मुरब्बे से इंसान की बू कैसे आ रही है। नादिर ने भी मुरब्बे को चख कर देखा और कहा, हाँ सच है, बादशाह सब खूनखार होते हैं। मुरब्बे में भी आदमी का खून मिला हुआ हो तो ताज्जुब की कोई बात नहीं। मैं भी एक बात पर हैरान हूं, तश्तरी में रोटियां इस सलीके से एक माहिर नान बाई ही चुन सकता है। हाँ, ऐसा ही होगा, नसर ने कहा। हमको यहाँ इसलिए बुलाया गया है कि हमसे महल में होने वाले वाक़े का राज मालूम किया जाए। हमसे जरूर पूछगिछ की जाएगी, हम उनको क्या जवाब देंगे? हमें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, नौरोज ने राय दी। हम उनसे सच्ची बात कह देंगे। हाँ, अब यही वक्त है कि 3 दिनों के सफर में हम पर जो कुछ गुजरा है वो हम एक दूसरे को कह सुनाए, नादिर ने कहा। चुनाचे तीनों भाइयों ने अपना अपना किस्सा सुनाना शुरू किया। सबसे पहले नसर ने अपनी आप बीती सुनाई कि किस तरह उसने शेर से लड़कर उसको मार डाला और सबूत के तौर पर उसने शेर की खाल में से जो पट्टा काट कर अपनी कमर के गिरे बांध लिया था उसे खोलकर अपने भाइयों के सामने रख दिया। फिर नौरोज ने अपनी सरगुज़श्त बयान की और सांप की खाल में से काटा हुआ पट्टा अपनी कमर से खोलकर भाइयों को दिखा दिया। अब नादिर की बारी आई। उसने तीसरी रात वाला सारा वाकया कह सुनाया और इन चीजों को अपनी जेब से निकाल कर दिखाया जिन्हें वो महल से लेता गया था। बादशाह और वजीर पर सारा राज खुल गया, लेकिन भाइयों ने गोश्त, मुरब्बे और रोटियों के बारे में जो बातें कही थी वो उनकी समझ में नहीं आ रही थी। चुनाचे उन्होंने सबसे पहले चरवाहे को बुला भेजा, जो फौरन हाजिर हुआ। सच सच बता, बादशाह ने बड़े रौब से चरवाहे से कहा, तूने कल जिस भेड़ का गोश्त भेजा था क्या उसको किसी कुतिया ने दूध पिलाया था? जहां पना, चरवाहे ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, आप मेरी जान बख्श दें तो अर्ज करूं। बख्श दी तेरी जान, सच सच बता, चरवाहा बोला। जाड़ों में मेरी एक भेड़ जिसके अभी कुछ दिन पहले मेमना हुआ था सर्दी से मर गई। मुझे मेमने पर रहम आ गया और मैंने उसे एक कुतिया को सौंप दिया। उस कुतिया ही ने अपना दूध पिलाकर उसको पाला। कल मैंने उसी भेड़ को काट कर उसका गोश्त आपके लिए भेज दिया था, क्योंकि मेरे पास वही एक भेड़ रह गई थी, बाकी सबको आपके नौकर पहले ही ले जा चुके थे। अब बादशाह ने माली को बुलवाया। जब वो हाजिर हुआ तो बादशाह ने रौब से पूछा, सच सच बता, क्या अंगूर के मुरब्बे में आदमी का खून मिला हुआ था? हजूर, एक वाकया हुआ था, अगर जान की अमान पाऊं तो वो वाकया बयान कर दूं। माली ने जवाब दिया, बख्श दी तेरी जान, मैंने सुना क्या हुआ था? बादशाह ने कहा। माली बोला, पिछले साल गर्मियों की बात है, मैंने आपके लिए सबसे अच्छे अंगूर बचा रखे थे। न जाने कौन रोज रात के वक्त आकर उनको चुरा कर ले जाने लगा। मैं अंगूर की बेलों के नीचे छुपकर चोर का इंतजार करने लगा। अचानक एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। जब वो करीब आया तो मैंने लाठी खींचकर उसके सर पर मार दी। चोर वहीं मर गया। मैंने अंगूर की बेलों के नीचे ही एक गड्ढा खोदकर मुर्दे को उसमें गाड़ दिया। अगले साल अंगूर की बेलें इस तरह परवान चढ़ी और उन पर इतना अंगूर लगा कि खुदा की पनाह, पत्तों से ज्यादा अंगूर के गुच्छे थे, लेकिन उसके मजे में जरा सा फर्क था। इसलिए मैंने ताजे अंगूर आपको ना भेजकर उनका मुरब्बा बनवा लिया। इस तरह भाइयों की कही हुई 2 बातें सच साबित हुई। रही तीसरी रोटियों वाली बात, तो वो भी बिल्कुल सही थी। तश्तरी पर रोटियां खुद बादशाह ने अपने हाथों से चुनी थी। मालूम हुआ कि उसका बाप नान बाई था। बादशाह भाइयों के पास कमरे में गया, उनसे सलाम अलैक किया और फिर कहा, तुमने जो कुछ कहा था वो सच निकला है। इस वजह से तुम लोग मुझे और भी पसंद आ गए हो। अब मेरे मोअज़्ज़िज़ बहादुर मेहमानों, मेरी तुम लोगों से गुजारिश है। फरमाइए, भाइयों ने कहा। आपकी फरमाइश अगर मुनासिब होगी तो हम उसको जरूर पूरा करेंगे। बादशाह बोला, मेरी 3 बेटियां हैं और बेटा कोई नहीं है। तुम लोग यहीं रह जाओ। मैं अपनी बेटियों की तुम लोगों से शादी कर दूंगा। सारे शहर को दावत दूंगा। 40 दिनों तक सबको पुलाव खिलाता रहूंगा। आपकी ये बात तो बहुत अच्छी है, नसर ने जवाब दिया, लेकिन हम आपकी बेटियों से शादी कैसे कर सकते हैं? हम ना तो बादशाहजादे हैं और ना ही हमारे बाप कोई अमीर आदमी है। आपने अपनी दौलत बादशाहत से कमाई है और हमने मेहनत करना सीखा है। बादशाह इसरार करने लगा, ये ठीक है कि मैं पूरे एक मुल्क का फरमा रवा हूं और तुम्हारे बाप ने तुम लोगों को अपनी मेहनत की कमाई से पाल पोस कर बड़ा किया है, मगर वो ऐसे बहादुर बेटों का बाप तो है, फिर वो किसी बात में मुझसे कम है?
اصل میں وہ تو مجھ سے زیادہ دولتمند ہے، اسی لیے تو میں، جو کہ ایسی لڑکیوں کا باپ ہوں جن کے آگے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ سر جھکا چکے ہیں، منتیں کر چکے ہیں، تم لوگوں سے یہ پیشکش کر رہا ہوں کہ میری بیٹیوں سے شادی کر لو۔ تینوں بھائی راضی ہو گئے۔ بادشاہ نے بڑی دھوم دھام سے اپنی تینوں بیٹیوں کی ان تینوں بھائیوں سے شادی کر دی۔ سارے شہر میں خوشیاں منائی گئیں، سارے شہر نے دعوتیں کھائیں اور یہ سلسلہ 40 دنوں تک چلتا رہا۔ تینوں بھائی اپنی بیویوں کے ساتھ شاہی محل میں رہنے لگے۔ بادشاہ اپنے دامادوں سے بہت خوش تھا۔ نادر سے اس کو سب سے زیادہ محبت تھی۔ ایک دن بادشاہ اپنے باغ میں نالے کے کنارے ایک ٹھنڈی جگہ پر سو رہا تھا۔ نادر بھی پاس ہی بیٹھا ہوا تھا اور کوئی نہیں تھا۔ اچانک نالے سے ایک زہریلا سانپ نکل آیا جو بادشاہ کو کاٹنے ہی والا تھا کہ نادر نے اس کو دیکھ لیا اور اپنی تلوار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ وہ ابھی تلوار کو غلاف میں ڈال ہی رہا تھا کہ بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ نادر کو اس حالت میں دیکھ کر اس کے دل میں شبہ پیدا ہوا۔ اس نے دل میں سوچا، میری بیٹی سے شادی کر کے اس کی ناک اور بھی چڑھ گئی ہے، یہ اور بھی لالچی ہو گیا ہے، یہ تو اب مجھ کو مار کر خود بادشاہ بننا چاہتا ہے۔ بادشاہ اٹھ کر اپنے وزیر کے پاس گیا اور واقعہ اس کو سنا دیا۔ وزیر بہت دنوں سے بہادر بھائیوں سے جلا بیٹھا تھا، بس موقع کا انتظار کر رہا تھا۔ اب موقع پا کر اس نے بادشاہ سے ان کی خوب جی بھر کر برائی کی۔ میری رائے لیے بغیر آپ نے ان لفنگوں سے اپنی پیاری بیٹیوں کی شادی کر دی، وزیر نے کہا، اور یہ لیجئے، آپ کا عزیز داماد آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا، یہ مکاری سے کسی نہ کسی دن آپ کا خاتمہ ہی کر دے گا، دیکھ لیجئے گا۔ بادشاہ وزیر کی باتوں میں آ گیا اور اس نے حکم دیا کہ نادر کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ اس کو پکڑ کر جیل میں بند کر دیا گیا۔ نادر کی بیوی سب سے چھوٹی شہزادی بہت اداس ہو گئی۔ دن بھر روتے روتے اس کے رخساروں کی سرخی غائب ہو گئی۔ ایک دن وہ اپنے باپ کے پاس آئی اور اس کے قدموں میں گر کر کہنے لگی کہ اپنے داماد کو رہا کر دیجیے۔ تب بادشاہ نے حکم دیا کہ نادر کو جیل سے نکال کر لایا جائے۔ اس کو بادشاہ کے سامنے حاضر کیا گیا تو بادشاہ نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ تم اتنے مکار ہوگے، تم نے مجھ کو مار ڈالنے کا ارادہ کیسے کر لیا تھا؟ اس کے جواب میں نادر نے بادشاہ کو طوطے کا ایک قصہ سنایا۔ وہ قصہ کچھ اس طرح تھا۔ کسی زمانے میں کسی جگہ ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس کے ایک طوطا تھا۔ بادشاہ اپنے طوطے سے اتنا پیار کرتا تھا کہ طوطے کے بغیر اسے پل بھر کو بھی چین نہیں آتا تھا۔ طوطا اپنے مالک سے میٹھی میٹھی باتیں کرتا اور اس کا دل بہلاتا رہتا تھا۔ ایک دن اس نے بادشاہ سے کہا، میں اپنے وطن ہندوستان میں اپنے ماں باپ اور بھائی بہنوں کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ میں بہت دنوں سے قید میں ہوں۔ اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھے 20 دن کی چھٹی دیجیے۔ میں اپنے وطن ہوا ہوں۔ 6 دن جانے میں لگیں گے، 6 دن لوٹنے میں، اور 8 دن میں اپنے گھر والوں، اپنے ماں باپ، بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ رہوں گا۔ نہیں، میں تم کو جانے نہیں دوں گا، بادشاہ نے کہا۔ تم ایک بار چلے جاؤ گے پھر لوٹ کر نہیں آؤ گے اور میرا دل اچاٹ ہو جائے گا۔ جہاں پناہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ لوٹ آؤں گا، آپ میری بات کا یقین مانیے۔ بادشاہ راضی ہو گیا اور اس نے کہا، اچھی بات ہے، میں تم کو چھٹی دیتا ہوں مگر صرف 2 ہفتوں کی۔ طوطا کہنے لگا، چلیں ٹھیک ہے، یوں ہی صحیح، میں کسی طرح 2 ہفتوں میں واپس آ جاؤں گا۔ بادشاہ نے پنجرہ کھول دیا۔ طوطا پھر سے اڑ کر پنجرے سے نکلا اور دیوار پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے سب لوگوں کو الوداع کہا اور جنوب کی طرف اڑ چلا۔ بادشاہ پیچھے سے اس کو دیکھتا رہ گیا۔ اس کو یقین تھا کہ طوطا اب لوٹ کر واپس نہیں آئے گا۔ طوطا 6 دنوں میں اپنے وطن ہندوستان پہنچ گیا اور کسی طرح اپنے ماں باپ کو تلاش کر لیا۔ بیچارہ اتنا خوش تھا کہ کچھ نہ پوچھیے۔ ادھر ادھر اڑتا پھرتا، پھدکتا رہتا، کلا بازیاں کھاتا، چیختا چلاتا، جنگل کی ہریالی میں جی بھر کر نہاتا۔ وہ کتنے ہی عزیزوں، رشتہ داروں اور دوستوں کے ہاں مہمان بنا۔ اس کو پتہ بھی نہ چل پایا کہ کس طرح 2 دن گزر گئے اور پھر دوبارہ قید میں جانے کا وقت آ گیا۔ 6 دن آنے میں لگے تھے، 2 دن اس نے گھر گزارے اور اب 6 دن اسے جانے میں لگیں گے۔ اس طرح اس کا سارا وقت پورا ہو جائے گا، یعنی 2 ہفتے کی چھٹی جو بادشاہ نے دی تھی۔ بیچارے طوطے کا اپنے ماں باپ، بھائی بہنوں سے دوبارہ جدا ہونے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ خوشی کے دن پلک جھپکنے میں گزر گئے تھے اور اداسی کے پہاڑ جیسے دن شروع ہو رہے تھے۔ اس کے سب دوست، رشتہ دار، احباب جمع ہو گئے۔ ان سب کو طوطے پر بہت رحم آ رہا تھا۔ سب اس کو یہی سمجھا رہے تھے کہ اب ادھر لوٹ کر مت جاؤ، لیکن طوطے نے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں وعدہ کر چکا ہوں، وعدہ خلافی کیسے کروں؟ ارے تم بھی کیا باتیں کرتے ہو، ایک طوطے نے کہا، بھلا تم نے کبھی کسی بادشاہ کو اپنا وعدہ پورا کرتے سنا ہے؟ تمہارا بادشاہ اگر انصاف والا ہوتا تو وہ تم کو 14 سال تک قید میں رکھنے کے بعد کیا صرف 2 ہی ہفتوں کی چھٹی دیتا؟ کیا تم اس دنیا میں اسی لیے آئے ہو کہ قید میں رہو؟
किसी का दिल बहलाने की खातिर अपनी आज़ादी को हाथ से न जाने दो। बादशाह की नेकियां कम और बुराइयां ज्यादा हैं। बादशाह के और शेर के करीब रहना हिमाकत भी है और खतरनाक भी। लेकिन तोते ने किसी की बात न मानी और लौटने के लिए तैयार हो गया। तब उसकी मां ने उससे कहा, तुमने जो लौटने की ठान ही ली है तो मेरी एक बात सुनो। हमारे यहाँ एक किस्म के फल होते हैं, अमृत के फल। कोई बूढ़ा उनको खाएगा तो एकदम जवान हो जाएगा। तुम इन फलों में से कुछ ले जाकर अपने बादशाह को देना और उससे गुजारिश करना कि तुमको कैद से आज़ाद कर दे। मुमकिन है उसके दिल में इंसाफ जाग उठे और वह तुमको आज़ाद कर दे। सबों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। कुछ तोते फौरन जाकर अमृत के छोटे छोटे 3 फल तोड़ लाए। तोते ने उन फलों को ले लिया और सबको अलविदा कहकर शुमाल की तरफ उड़ चला। उसके सब अजीज और दोस्त बुरुमीद निगाहों से पीछे से उसको देखते रह गए। 6 दिनों में वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया। उसने अपने लाए हुए फल बादशाह को दिए और उनकी खासियत बताई। बादशाह बहुत खुश हुआ और तोते को आज़ाद कर देने का वादा कर लिया। उसने अमृत का एक फल अपनी बीवी को दे दिया और बाकी 2 खुद खाने की गर्ज से एक प्याली में अपने पास रख लिए। उधर लालच और गुस्से से वजीर का दिल डावाडोल हो उठा और उसने पलड़ा पलटाने की गर्ज से जल्दी से कहा, बादशाह आलम, आप ये फल अभी ना खाइए, पहले इनको आजमा कर देखें। अगर ये अच्छे साबित होंगे तो आप इनको खा लीजिएगा। जरा देर से खाने में कोई हर्ज नहीं। वजीर की बात बादशाह को पसंद आई। वजीर ने बादशाह की आंख बचाकर फलों में जूद असर जहर मिला दिया। फिर उनको आजमाया गया। 2 मोरों को लाकर उनसे ये फल चखवाए गए। मोर वहीं गिरकर ठंडे हो गए। देखा आपने, वजीर ने कहा, इनको अगर आपने खा लिया होता तो आपका क्या हाल होता। बस मैं भी मर जाता। बादशाह ने बड़े हिजान के आलम में जवाब दिया। उसने फौरन गुस्से से तोते को पिंजरे से निकाला और उसकी गर्दन मरोड़ दी। बेचारे तोते को बादशाह से यही इनाम मिला। इस वाकया के बाद कुछ दिन गुजर गए। एक दिन बादशाह को एक बूढ़े पर गुस्सा आ गया और उसने बूढ़े को मौत की सजा सुना दी। अमृत का जो एक फल बचा हुआ था उसको बादशाह के हुक्म पर बूढ़े को खिलाया गया। बस फिर क्या था, देखते ही देखते बूढ़े के सर पर असरे नौ काले काले बाल उग गए, मुंह में नए दांत निकल आए, आंखों में जवानी की चमक पैदा हो गई और 70 साल का बूढ़ा एकदम 20 साल का नौजवान बन गया। अब बादशाह को पता चला कि उसने नाहक तोते की जान ली थी, लेकिन अब पछताने से क्या हो सकता था। यह किस्सा खत्म करके नातिर ने बादशाह से कहा, अब मैं आपको वो वाकया सुनाता हूं जो उस वक्त हुआ था जब आप सो रहे थे। ये कहकर वो बाग में गया और जिस सांप को उसने तलवार से 2 टुकड़े कर दिए थे उसके दोनों टुकड़े उठा लाया। बादशाह अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हुआ और नादिर से माफ़ी मांगने लगा। नादिर ने बादशाह से कहा, हुजूर, हम भाइयों को इजाज़त दीजिए कि हम अपने वतन अपने घर चले जाएं। मालूम होता है कि बादशाहों के साथ नेकी और अमदो आश्ती से रहा नहीं जा सकता। बादशाह ने बहुत मिन्नतें की, बहुत हाथ जोड़े कि मत जाओ, लेकिन तीनों भाई राजी न हुए। हम दरबारी बनकर शाही महल में नहीं रह सकते, उन्होंने कहा, हम तो अपनी मेहनत के बल बूते पर जिएंगे। तब फिर मेरी बेटियां तुम्हारे साथ नहीं जाएंगी, ये अपने घर रहेंगी, बादशाह ने कहा। लेकिन शहजादियां एक आवाज़ में बोल उठीं, नहीं, हम अपने शौहरों से जुदा नहीं होंगी। ये सुनकर बादशाह हक्का बक्का रह गया और उसने बादले नख्वास्ता उन सब को जाने की इजाज़त दे दी। तीनों बहादुर जवान अपनी बीवियों के साथ अपने आबाई घर लौट आए और अपनी कुव्वत बाजू से मेहनत मजदूरी करते हुए बड़े आराम और सुकून से ज़िंदगी बसर करने लगे।